can be classified as pure substances and mixtures. A mixture is a combination of two or more substances which are not chemically the same and do not chemically react together. A mixture has the same properties as that of its component elements and can be separated by physical means. In a mixture of sugar and sand, even if we increase the volume of sugar or sand, the mixture remains the same. So it implies that in a mixture the components can be present in any proportions. When we dissolve common salt in a glass of water, we will obtain salt solution. Similarly, put some mud in a glass containing water and stir it well. We will obtain a mixture with the solid particles of mud dispersed in water. By carefully observing, we will find that in common salt solution, no salt particles settle down to the bottom of the glass. But in the glass containing muddy water, some solid particles settle down to the bottom of the glass. This explains that mixtures have different compositions. Accordingly, mixtures can be classified as homogeneous and heterogeneous. A homogeneous mixture has the same uniform appearance and composition throughout. Many homogeneous mixtures are commonly referred to as solutions. A solution is a mixture of two or more substances in a single phase. The substance in the largest amount is called solvent, and the substance in the smallest amount is called solute. Now, consider the case of the common salt solution we have prepared. Here, water is the solvent and salt is the solute. Homogeneous solutions are classified as different types based on the solvent and the solute. 1. Liquid in liquid solution. 2. Solid in liquid solution. 3. Gas in liquid solution. In a solution of vinegar in water, both the solvent and solute are liquids, hence it is a liquid in liquid solution. In the case of common salt solution, it is a solid in liquid solution. The best example of gas in liquid solution is soda water. Soda water contains carbon dioxide gas. Let's understand heterogeneous solutions. Suspensions and colloids are heterogeneous mixtures. A suspension is a mixture of large particles. The size of the particles in a suspension is of the order of 10 to the power of -5 centimeters or larger. In a suspension, the solute particles do not dissolve, but they are suspended throughout the solvent. The muddy water which we prepared is a suspension. Colloids are also heterogeneous mixtures, but they appear like a homogeneous mixture. Milk is a good example of colloids. The particle size in colloids is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. In colloids, the particles are uniformly distributed throughout the solution. Colloidal particles cannot be seen with the naked eye because of their small size, but their presence can be observed with the help of an ultramicroscope or an electron microscope. What is the effect of light in homogeneous and heterogeneous mixtures? Let us understand how light affects a colloidal solution. When egg albumin is taken in a glass beaker and some water is added to it, we get a colloidal solution of egg albumin. If we were to shine a beam of light from a torch through the beaker, the light is scattered by the colloidal particles and the path of light can therefore be observed. The light scattering effect. In the case of a suspension, light does not pass through it. In a true solution of salt in water, we will not see the path of light as there is little scattering of light. Things to remember. Mixtures are composed of variable proportions of different substances without chemical bonding and have the same properties as that of its component elements. Homogeneous mixtures have the same uniform composition and appearance throughout, whereas heterogeneous mixtures consist of visibly different substances or phases. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and the substance present in the largest amount is called solvent, and that present in the smallest amount is called the solute.
Suspensions are a heterogeneous mixture of large particles on the order of 10 to the power of -5, in which the solute particles are suspended throughout the solvent. Colloids are heterogeneous mixtures in which the particles are uniformly distributed throughout the solution and the particle size is smaller than 10 to the power of -5 centimeters. The light scattering effect shown by particles in a colloid is known as Tyndall effect. देखो ये बात हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि बॉय माइनस गर्ल इज इक्वल टू 50 पैसे। होगा कि नहीं होगा ये चीज बताओ। बॉय माइनस गर्ल इज इक्वल टू 50 पैसे। आगे क्या कह रहा है कि ईच बॉय रिसीव ट्वाइस द पैसे एज ईच गर्ल रिसीव। जितना गर्ल को मिल रहा है उससे दुगना मिल रहा है बॉय को। मान लेती गर्ल को x मिल रहा तो बॉय को क्या मिलेगा 2x। देखो इस सिस्टम से बता रही इसलिए इतना करना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा तो इतना कुछ भी करना नहीं, तुम लोग को पता होगा पहले से। ठीक है 50 पैसे। तो पे x का वैल्यू क्या हो गया 50 पैसे। अब गर्ल्स को हम क्या माने थे x माने थे और बॉय को क्या माने थे 2x में 2 इंटू 0.50 100 पैसे। किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ पर? किसी को कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हम लोग लेते बॉय, यहाँ पे आगे हम लोग का है गर्ल। तो बॉय के लिए क्या कह रहा है कि 100 पैसे पर स्टूडेंट है। ठीक है और गर्ल के लिए क्या है? गर्ल के लिए 50 पैसे पर स्टूडेंट। अब टोटल क्या खर्च हो रहा है देखो। टोटल कितने हैं 115 स्टूडेंट है। टोटल कितने हम लोग के 115 स्टूडेंट है और है टोटल कितना 69 रुपीज। तो सबसे पहले क्या करो कि 69 को पैसे में बना दो क्योंकि ये सब भी पैसे है पर स्टूडेंट का। तो ये 69 पैसे बना दिए 115 से अगर हम डिवाइड करते तो एवरेज आ जाएगा है ना। बॉय एंड गर्ल दोनों का मिलाकर हम लोग का एवरेज आ जाएगा पर स्टूडेंट का। ठीक है और एवरेज ही तो हमको चाहिए यहाँ पर। तो इसको देखो डिवाइड करो होता है कि नहीं। 15 4 8 40 0 5 दूनी 10 5 3 15 23 और कटेगा ये 1380/23। चलो रहने देते हैं। ठीक है क्या आ गया 1380 डिवाइडेड बाय 23। जो ज्यादा है ये पैसे पे ज्यादा कौन हम लोग का ये, इसमें से माइनस करेंगे 100 माइनस 1380 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है इसमें ये कम होता है ये ज्यादा होता है तो इसमें से माइनस करते हैं 1380 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 0.50 डायरेक्ट लिख देते हैं। सब तो पैसे में है ना तो 50 सारा तुम लोग का कैलकुलेशन पैसे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है इसी कैलकुलेशन से बचने के हम लोग करते थे। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 आ गया। 1380 माइनस करेंगे अगर तो आ जाएगा 0 10 में 60 गया 2 और 12 में से 3 गया 9 ये आ जाएगा हम लोग का 920। कैलकुलेशन देखना। ठीक है इसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 और 50 किया 150 तो मतलब 1380 और इधर आ गया हम लोग का 20 50 करेंगे तो 1000 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीन्स 1150 0 8 5 3 में से क्या तो ये आ जाएगा भाई हम लोग का 230 डिवाइडेड बाय 23 है ना। यहाँ पे भी आ जाएगा हम लोग का 23 तो खत्म हो गया। ठीक है 230 ही आएगा ना। चलो 0 से 0 कट जाएगा फिर ये 4 के 12 का तो 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 तो आ गया हम लोग का 1:4 1:4। गलत है क्या 1:4 नहीं आ रहा है। वन इज टू फोर सही है। ठीक है तो 4 और 1 5। अब हमको यहाँ पर क्या स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में रेशियो आया और टोटल स्टूडेंट है क्या 115
तो 415 5 यूनिट इक्वली कितना 115 का, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 10 5 15, तो ये आ जाएगा हम लोग का 23, और ये यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 के 12 का 2 1 4 2 8 92 एंड 23, देखो जो कुछ है वो आ जाएगा। ऐसे हम लोग का यही पर आ जाता है आंसर, 0 से 0 अगर काट देते तो यहाँ पर भी हम लोग जोड़ करके इस बात को देख लेते कि यहाँ 92 आया है या 23 आ रहा है, इन दोनों को जोड़कर अगर 115 आ रहा है तो फिर आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, हम करके बता दिए तुम लोगों को। लेकिन अगर 23 और 92 पहले ही आ रहा है और दोनों को जोड़कर 115 आ रहा है तो आगे कैलकुलेशन नहीं करना। बता देखो, बॉय और गर्ल का तो हम निकाल लिए थे कि बॉय और गर्ल में 100 पैसे पर स्टूडेंट था और ये हम लोग का 50 पैसे पर स्टूडेंट है, ठीक है। और 69 ना, ये 69 100 पैसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझना हमको ये है कि ये पूरा का पूरा पैसा कितना है 115 स्टूडेंट, तो इसको भी 115 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 115 मान लेते हैं कि जो लड़के जो 100 पैसे पर स्टूडेंट ला रहे, मान लेते हैं कि 115 लड़के, तो 115 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम मान लिए कि 115 लड़कियां हैं तो 115 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 11500, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 का 0 5 5 25 5 1 5 6 7 1750, सही है कि नहीं एक बार देख लो तो। गलत है हमको लगा, 5 का 0 5 5 25 का 5 तो 5 कम 5 6 7 1750, 5750, इसका भी देख लो 11500, ठीक है। तो माइनस कर तो ज्यादा कौन ही 6900 पैसे, तो 100 मिला देते इसमें 7000 हो गया, 7 4 11 बने 4500 और 100 4600, ठीक है। और यहाँ आया मेरे पास 6900 में से 5750 माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा हम लोग का 900 और उधर हो जाएगा हम लोग का 250, 9 2 11 1150, सही है कि नहीं एक बार बताओ तो, कैलकुलेशन सही है या नहीं है, सही है कि नहीं है? नहीं गलत है। 250 250 सेट करेंगे तो 6000, सही है, 1150, ठीक है ना। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 2 10 5 3 15, 5 से इसको काट देंगे 5 9 45 5 9 45 5 2 10 3 तो 5 9 तो 11, जोड़ने पर 115 और टोटल स्टूडेंट भी 115 था, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 23 और 92 ही डिवाइड होगा, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। इस सम ऑफ 36.90 वो 36 रुपए 90 पैसा मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स, 90 कॉइन से बना हुआ है 36 रुपए 90 पैसा, दैट आर इधर 20 पैसे, मींस उसमें 20 पैसा है तुम्हारे पास, और क्या है, और तुम्हारे पास उसमें 50 पैसा है, 20 पैसा और 50 पैसा का कॉइन है। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स, बहुत इजी, कुछ नहीं 36.90 सबको पैसे में बदल दो तो 3690 पैसा हो गया, ठीक है। फिर क्या करो कि ये पूरा कितने का हम लोग 90 कॉइन्स का मान लेते हैं कि 20 पैसे का 90 कॉइन है और 50 पैसे का भी 90 कॉइन है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो इसको 0 0 18, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 45, 4500 से 3690 माइनस कर दो 4500 3690, 0 का 0 10 में से 9 गया 1 4 14 में 6 के 8 3 हो गया 810। एक्चुअली कैलकुलेशन लिख कर करना है इसीलिए पढ़वा ना, क्योंकि हम कल रात भर सोए नहीं, कल रात भर क्लास चल रहा था, ठीक है। करीब 5 10 15 मिनट जो है सोने के लिए गए और 7 साढ़े 7 बजे से कंस्ट्रक्शन का फिर ऊपर में काम शुरू हो गया, ईटा पटकने लगा, बस हो गया काम खराब। इस सुबह से लेकर के वही सब चीज में बिजी रहे, काम करवाने में, कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, बहुत सारा छोटा छोटा चीज जो है बार बार जो है लाना, ये सब करना, बहुत ड्रामा है सब में, पूरा टाइम पार हो गया, कल से सोए नहीं है। तो देखो 810 हो गया, इसे कैलकुलेशन में कुछ हो तो बताना। तो 18 18 36 ये हो जाएगा हम लोग का 1890, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 1890, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 81 8 1 9 8 17 18, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा ये,
इसे काट देंगे 27, 3 6 18, 3 3 9, ये कट जाएगा हम लोग का 9 से, 9 3 27, 9 7 63, तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 है, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 90 कॉइन को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 9 को, इसीलिए 3 यूनिट करेगा 27 को, इसीलिए ये 7 यूनिट करेगा 63 को। और यहाँ पर भी हम लोग का आंसर आ जाता, अगर हम इन दोनों को जोड़ते और यहाँ पर देखते कि 27 और 63 आ रहा है और इनको जोड़कर मेरा अगर 90 कॉइन हो रहा है, तो वहां भी रुक सकते थे, तो एक लाइन का तुम्हारा जो समय था ना वो बच जाता पैसे का कॉइन। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो हम लोग का 36 रुपए 90 पैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको पैसे में बदल दो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3690 पैसा हो जाएगा। और ये टोटल कॉइन कितना है, टोटल कॉइन है 90, तो मेरा एवरेज कॉइन आ जाएगा, है ना, 20 और 50 का एक एवरेज आ जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एवरेज ही चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ पे एवरेज ही चाहिए, तो 0 से 0 करके हाथ से इसको काट देंगे, तो 9 36 9 41 रुपये, एवरेज क्या आ गया हम लोग का 41। अब देखो ज्यादा क्या है, 50 50 में से 41 चला गया तो आ गया हम लोग का 9, और 41 में से 21 चला गया तो हम लोग का 20। काट दे इसको, 3 3 3 7 21, 7 और 3 10 जोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ गया। देखो एवरेज एज ऑफ बॉय, एक तरफ बॉय है और एक तरफ गर्ल है मेरे पास। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। अब कह रहा है कि 16.66, एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 16.666 ऐसे कोई नंबर है, तो क्या हम इसको 16 2/3 लिख सकते हैं, 16 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं, 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो 666 ही आएगा हम लोगों के पास। अब 18.75 है, तो 18.75 को हम लोग 18 3/4 लिख सकते हैं, है ना, 18 3/4 लिख सकते हैं। द एवरेज एज ऑफ ईच गर्ल इज 18, इसको हम लोग 18 3/4 लिख दिए। फिर कह रहा है thus the average age of all the 40 student of the class is 17.5। ठीक है, तो ये टोटल क्या हम लोग का एवरेज है, 17.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 1/2। कोई दिक्कत इस बात पे किसी को भी, बताओ जो लिखे वो सही है नहीं, या कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब क्या ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो इसको सॉल्व करो, 18 छठे 18 छोटे 72 ना, 72 75, हम लोग का 75 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस का 17 34 और 35 35/2, बड़ा ये 17 34 से 35, हो जाएगा 35/2 माइनस का 16 43 49 50, 50/2 कुछ गलत हो रहा है क्या, सही है ना, नहीं कुछ गलत हो रहा है, 13.75 16 2/3 और 1/2, अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ गलत हो रहा है 50, ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान देना, ये माइनस में, ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 74, और ये आ जाएगा हम लोग का 2 बार में, ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोग का, इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4। इसको अगर कैलकुलेशन करते 3 और 2 6, 6 अगर 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 105, और ये आ जाएगा 100, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 से 5 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब ये क्रॉस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 रेशियो, 3 और 2 ये 5 हम लोग का इक्वल है कितना है, 40 स्टूडेंट्स के, तो एक इक्वल हो जाएगा 8 के, तो इसीलिए 8 इंटू 3 एंड 2 इंटू 8, ये हो जाएगा हम लोग का 60, और ये हो जाएगा हम लोग का 24। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ गर्ल इन द क्लास 16, द नंबर ऑफ गर्ल इन द क्लास 16, क्लियर है।
लास्ट में नहीं समझे, देखो ये डायरेक्ट करती है, ये 75 35, ये तो एलसीएम आ गया 4, ठीक है। सॉल्व कर करके कर रहे, बड़ा में से छोटे को घटाएंगे तो इसको हम लोग क्या किए, ये जो हम लोग का फ्रैक्शन था इसको ठीक किए, है ना। इसको हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो 75/4 आया, माइनस इसको सॉल्व करें तो 35/2, 4 का एलसीएम लिए और इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए तो आया 5/4, ठीक है। यहाँ पर हम एक लाइन स्किप कर दिए, क्या किए कि 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, फिर 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 3 को 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 100, तो 105 में से अगर 100 को माइनस करोगे तो 5 ही आएगा, और नीचे 6 का 6 रहेगा। हम क्या किए, ऊपर ऊपर का 5 5 काट दिए, 4 और 6 को हम काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कोई रेशियो में इसीलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 क्रॉस कर दिए इसको, क्योंकि रेशियो है ना। मेरे पास है 1/2 1/3, तो 1/2 1/3 को हम कैसे करेंगे, हमको पता है कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तुम लोग को पढ़ाया हुआ है ना, इतना तुम लोग को रेशियो में करवाया हुआ, इसलिए मल्टीप्लाई 6 ना करके डायरेक्ट क्रॉस लिख दिए 3 और 2, तो हम लोग का 3 और 2 यूनिट में आया, किसके रिस्पेक्ट में था, हम लोग का नंबर के, नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना मेरा 40, तो 3 और 2 5 यूनिट इक्वल है 40 के, तो 1 यूनिट हो जाएगा 8, इसीलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 उसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में, या लिख कर बताया। एक फैक्ट्री में जितने वर्कर है या जो भी सब एम्प्लॉय ही होते हैं, कुछ ऑफिसर होते हैं, कुछ गेस्टेड होते हैं, कुछ नॉन ऑफिसर होते हैं, तो लोग यही मान लेते हैं कुछ ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर है, ठीक है। तो जो ऑफिसर है वो कितने हैं, पर हेड ऑल एम्प्लॉय एवरेज, द एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर, इसका गिनती दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 120, और ऑफिसर जो है उसका एवरेज कितना है 4,000 रुपए, और बोल रहा इफ द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज रुपीज 160 560, अदर जो बच रहा है हम लोग का नॉन ऑफिसर का क्या है 560, और टोटल जो हम लोग का जो टोटल एवरेज है मीन ऑफिसर नॉन ऑफिसर्स को मिला के वो हम लोग का 600। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है इस बात पर जो कि वो सही है या नहीं है बताओ, नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम माइनस करते बड़े में से तो ये आ जाएगा हम लोग का 3400, इसको अगर हम देखते तो ये आ जाएगा हम लोग का 40, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा, 1 हो जाएगा 32 4 मीन्स 1:85। देखो अब 1 ये क्या है हम लोग का ऑफिसर्स जो था, ये जो हम लोग रुपीज निकाले किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो 4,000 एवरेज पर ऑफिसर्स का था और 560 पर नॉन ऑफिसर का एवरेज था, ये दोनों का मिलाकर था। तब एक यूनिट रिप्रेजेंट करो 120 को, तो 85 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये निकालना है, और ये निकालने के बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 85 इंटू 120, ये हो गया हम लोग एक यूनिट, ये एक यूनिट और ये 85, टोटल जोड़ दो, अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 6 86 यूनिट, है ना। टोटल क्या आ रहा है 86, और एक यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रहा 120 ऑफिसर्स का, तो 85 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नॉन ऑफिसर्स आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अगर चाहे तो 86 इंटू अगर 120 करें तो भी आ जाएगा, बात समझ रहे हो ना, इंटू 120 अगर करें तो भी आ जाएगा, 12 0 2 7 12 96 96 96 और 4 और 3 103, टोटल आ जाएगा 10,320, टोटल आ जाएगा 10,320। नहीं तो अलग अलग करते तो इसको निकाले फिर 85 इंटू 120 करते फिर दोनों को जोड़ते, बात एक ही था, है ना, क्लियर है। देखो डीएर का बात हो रहा है, हिरन का, और D4 डीएर D4 तक हो जाएगा, ठीक है। तो काम करते इसको H4 हिरन D4 बत्तख, ठीक है। अब हेड्स का अगर बात हो जाए उनका सिर का, ठीक है, और सिर कितना है टोटल हम लोग का यहाँ पर, हेड्स आर काउंटेड 180 व्हेन द लेग्स आर 448, अगर हम लेग्स का बात करें तो एवरेज इसका क्या 448, ठीक है। हमको पता है कि जो हिरन है उसके कितने पैर है 4, और बत्तख के 2, ठीक है।
हम मान लेते हैं कि 180 जो हेड्स है ना, सारे के सारे कौन है, हिरन के, और ये मान लेते हैं कि सारे के सारे क्या है, बत्तख के। यहाँ से हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 0 8 चौके 32 का 2, 3 4 एकम 4 7 720, इसको करेंगे अगर 360 720 448 माइनस करेंगे, 2 में घर में 4 गया 7 6 272, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 248 एंड 368 14 6 8 है ना, 88 आ रहा है। देख लेना कैलकुलेशन सही हो। ठीक है, काट दो इसको, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 2 3 6 2 6 12, टोटल कितना है 180। तो देखो 180 आ रहा है, 40 6 50 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहीं पे छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़कर 180 आ रहा है। अब रेशियो भी निकालेंगे तो वही बात होगा, रेशियो निकालने के बाद इज इक्वल टू 180 करना होगा, एक यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, यही भी पता चल गया, इन दोनों को जोड़ने से 180 आ रहा है। इसका मतलब कि हिरन कितने 34 और बत्तख कितने 136, यही आया ना आंसर। क्या पूछा था, व्हाट आर द नंबर ऑफ हिरन, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो क्या कह रहा है, बॉय का एंड गर्ल का, बॉय का क्या है हम लोगों का 90 पैसे है ना, 90 पैसे एंड, चलो इसको नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं, या तो मल्टीप्लाई होता है पॉइंट में, तो लिखते नहीं हम लोग, एंड गर्ल का 65 पैसे, और टोटल स्टूडेंट कितने 50। तो मान लेते हैं कि 50 का 50 स्टूडेंट बॉय है, और यहाँ मान लेते हैं कि 50 का 50 जो स्टूडेंट है वो गर्ल है, और इनका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा 41 रुपए। तो 41 रुपए को पैसा में बदल देंगे, 4100 डिवाइडेड बाई 50, टोटल 50 है, तो एक स्टूडेंट का एवरेज आ जाएगा बॉय एंड गर्ल का मिला, 5 कर देंगे 5 8 40 10 82, तो हम 50 बना लेते हैं, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे, पर स्टूडेंट को तो निकाल ले रहे, टोटल पर निकाल रहे, तो 0 0 45 4 500, इसको करेंगे 5 0 5 5 25 का 5 2 6 35 2 2 32 3250, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा हम लोग का 400, इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 850। ठीक है, 0 से 0 चला गया, 52 आना चाहिए हम लोग का, 5 से अगर काटते तो 5 8 40, इसको काटेंगे तो 5 1 5 5 7 35, चलो कोई बात नहीं, 17 17 और 18, तो 17 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो हम 17 8 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 17 एंड 8 8 से 15 25 यूनिट इक्वल है कितना के 50 स्टूडेंट के, तो 1 यूनिट हो जाएगा 2, इसलिए 17 दूनी 34 और 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 16 एंड 34। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज का हो जाएगा हम लोग का 34। देखो और बताओ, ऐसे हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, 90 और 65 यहाँ पे आ जाता हम लोग का 82, वो मेथड बताया हुआ है, तो वो मेथड एक बार बता दिए, तुम लोग बार बार उस चीज को अपने खुद। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेंटर ऑफ स्क्वायर, पहले तो एक स्क्वायर है, एक रूम है, ठीक है, स्क्वायर की तरह एक ऐसा कोई रूम है, तुमको पता है कि स्क्वायर जो होता है ना, उसका जो सारा जो इक्वल होता है, साइड जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, मीन्स ये 10 है तो ये भी 10 होगा पूरा, ये बात पता है। अगर हम तुमको बोले कि एरिया क्या होगा, टोटल एरिया, तो तुम बोलोगे 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 100 मीटर स्क्वायर। इस बात पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इस बात पे कोई भी दिक्कत है? अब आगे बढ़ो, देयर इज ए स्क्वायर कारपेट, कारपेट जो होता है ना, एक्चुअली जो बड़ा बड़ा फैमिली, जो अच्छा फैमिली होता है, कभी भी जो होता है ना कारपेट पूरा का पूरा रूम में नहीं बिछाया जाता है, जो कारपेट होता है वो काफी कॉस्टली होता है, वो सिर्फ बीचों बीच बिछता है, जिसमें हम लोग का टेबल वेबल रखा था है, साइड में क्लोथ्स रहता है, ठीक है, कारपेट की तरह ही होता है लेकिन वो क्लोथ्स होता है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि एक ऐसा कुछ कारपेट है, एक कारपेट है, ठीक है, ये कारपेट बिछाया गया, और बोल रहा है फिर
कि अब ये वाला जो भाग बच गया ना, इस भाग में यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना तुमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है इसका चौड़ाई कपड़े का, ये है कपड़े का चौड़ाई, और इसका वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। तो सबसे पहले तो हम क्या किए कि टोटल का टोटल एरिया निकाल लिए, पूरा का एरिया निकाल दिए, है ना। विथ क्लोथ्स एंड स्क्वायर, बीच में हम लोग का कारपेट था, दोनों को मिला करके हमारा एरिया है 100 मीटर स्क्वायर का। अब इस बात को समझना कि क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को कह रहा है कि प्राइस ऑफ कारपेट, जो हम लोग का कारपेट है, हम लोगों का जो कारपेट है, और एक तरफ क्या है भाई, एक तरफ हम लोग का क्लोथ है, तो कारपेट है हम लोग का 15 पर मीटर स्क्वायर चार्ज कर रहा है, और ये 6.5 पर मीटर स्क्वायर। और टोटल हम लोग कितना है, टोटल अगर हम देखें कारपेट और कपड़े दोनों को लेके देखें तो 100 मीटर स्क्वायर है, ये पूरा 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, अब बीच का वैल्यू तो हमको पता नहीं कि कितना एरिया है, लेकिन पूरा हमको पता 100 मीटर। लेकिन ये बात हमको पूरा पता है कि जो कॉस्ट पड़ रहा है, देखो क्या बोला है, ए स्क्वायर कारपेट एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड विथ क्लोथ। मींस जो कारपेट है एंड जो क्लोथ्स है, अगर हम दोनों को एक साथ ले तो उनका जो पूरा का पूरा कॉस्ट, मतलब पूरा कॉस्ट कारपेट और क्लोथ दोनों को मिला करके जो कॉस्ट आएगा, वो आएगा हम लोग का 1338.50 रुपीज का। ठीक है, ये टोटल है, टोटल मीन्स 100 मीटर स्क्वायर का। 100 मीटर में हम लोग का कारपेट भी है ना, 100 मीटर में हम लोग का क्लोथ्स भी है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा हम लोग का 650। बताओ क्या दिक्कत है इस बात पे? इस बात पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इस पे? नहीं। अब नॉर्मल जो हम लोग मिक्सचर में करते हैं वो इसके साथ हम लोग को करना है। ठीक है, तो क्या करो कि 1500 में से 1500 से 1338 को माइनस करो, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया हम लोग का 162.5। कैलकुलेशन देखना। ठीक है, अब 13.8 है, 1338 में से 650 को माइनस करते हैं। ठीक है, 650 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 8, 13 में से 5 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 688.5, 688.5। देखो तो यहाँ तक सही है कि नहीं? कारपेट एंड क्लोथ, कारपेट का क्या आ गया हम लोग का, कुछ गलत हो रहा है क्या? गलत हो रहा है ना, 1500 क्या लिख रहे हैं, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए ना, उल्टा लिख दिए, लिखे सही है, उल्टा लिख दिए इसको। माइनस करेंगे यहाँ आएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 688.5, ये है ना, उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, और सब का सब ये वर्ग मीटर में, इस बात को ध्यान रखना, सब का सब क्या हम लोग का वर्ग मीटर में। अब अगर हम इसको काट देते हैं ना, अगर इसको हम काटते हैं तो निकाल के देख लेना, 81 आ जाएगी, 19 आ जाएगा, वर्ग मीटर, ध्यान रखना, वर्ग मीटर में। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा था ये बताओ, तो तुम बोलोगे एरिया के। ये हम लोगों के किसके रिस्पेक्ट में आ रहा था, एरिया के, और ये क्या, ये कारपेट है। अब 81 है, इसका जो पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कितना है, तो तुम बोलोगे 81। अगर एरिया 81 है तो तुम बताओ कि इसका जो एक साइड है, इस साइड का वैल्यू क्या होगा, तो तुम बोलोगे इस साइड का वैल्यू 9 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा, इसका भी 9 होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है कि नहीं? ये हम लोग का एरिया का है, इस बात का है, एरिया का है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम लोग का एरिया का है, होगा कि नहीं होगा बताओ, पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये बताओ कि ये पूरा का पूरा 10 है, ये पूरा का पूरा 10 है, और सिर्फ यही वाला वैल्यू 9 है, तो बचा क्या, तुम बोलोगे बचा 1।
तो क्या ये एक है? नहीं, ये होगा 0.5 मीन्स आधा, और ये भी होगा 0.5 मीन्स ये आधा और ये आधा मिलाकर के एक होगा, 9 और 1 10, तो ये 10 पूरा हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन था हम लोग का फाइंड द विड्थ ऑफ क्लोथ्स बॉर्डर। जो क्लोथ्स बॉर्डर उसकी चौड़ाई क्या है? तो 1/2 या 0.5। बताओ, क्लियर है? ये मैन इज एम्प्लॉयड ऑन ए कंडीशन, एक कंडीशन पे क्या रखा हुआ है कि 200 रुपए उसको मिलेगा पर डे का, अगर वो डेली आता है, ठीक है। और अगर वो ना आए, किसी दिन एब्सेंट हो जाए, तो 70 रुपए पर डे का उसका डिडक्ट हो जाएगा सैलरी में से, ठीक है। और टोटल उसको क्या मिल रहा है? टोटल उसको 4380 रुपए मिल रहा है। कितने दिन का? तो बोलोगे 30 दिन का। तो मान लेते कि वो पूरा का पूरा 30 दिन आया। हम मान लेते कि वो पूरा का पूरा 30 दिन नहीं आया, तो अगर पूरा का पूरा 30 दिन आएगा तो कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। अगर वो पूरा का पूरा 30 दिन, अगर वो पूरा का पूरा 30 दिन नहीं आया तो क्या होगा? ये हो जाएगा हम लोग का 0 0 2100 माइनस 2100। अब ये देखो कि ज्यादा कौन है? ज्यादा ये 6000 में से 4380 को माइनस करो। अगर हम ऐसा करते हैं 6000 में से 4380 ना, क्या 6000 में से 4380 को अगर माइनस कर दे तो 0, 10 में से 8 गया तो 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1600, इसको एडजस्ट करेंगे तो ये होगा 6480। अब अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, और 4 यूनिट ये हो जाएगा हम लोग का 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्वेश्चन सिंपल था। राइट का बात हो रहा है एंड रॉन्ग का बात हो रहा है। तो राइट में क्या मिल रहा है? 3, एंड रॉन्ग पर 0.5 माइनस हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में जो स्टूडेंट जो टोटल आ रहा है मार्क्स, एवरेज जो आ रहा है 477 का आ रहा है। तो 477 किस पर है? 477 टोटल 250 क्वेश्चन पर है ना। तो मान लेते 250 का 250 क्वेश्चन सही हो गया, फिर मान लेते 250 का 250 क्वेश्चन भाई हम लोग का गलत हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा हम लोग का 750। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये आ जाएगा हम लोग का 250 और 5 आधा कर देते इसको 125, वो भी माइनस में। कोई दिक्कत है इस बात पे? किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं होगा, ठीक है। अब 750 है, इसमें से 477 अगर हम माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 3, 14 7 के साथ 6 में से 4 के 2, तो ये आ जाएगा हम लोग का 273। कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक है। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भाई हम लोग का 477 माइनस, और ये माइनस का 125, तो ये हो जाएगा 477, और ये प्लस होके 125 जो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे होगा 7 5 12 कर दो, 1 7 2 9 1 10 का 0 4 5 6 602। तो ये वाला जो वैल्यू आया हम लोग का, ये आ जाएगा 602 का, ठीक है। कट रहा है 7 3 10 2 12 6 2 8, कितने से कट रहा है? 7 से 7 कट रहा है। 7 8 56 7 6 42, 7 8 56 7 6 42, 7 या 21 7 9 63 39, और घटेगा 86 एंड 39। टोटल कितना है? 250 नहीं हो रहा है। तो इसको अगर हम जोड़े ना, ऐड करो इसको, 86 एंड 39 आया। तो ये मार्क्स के रिस्पेक्ट में बोला था, तो मार्क्स 9 से 15 का 5, 8 और 3 12, 9 से 15 का 5 1 8 3 12, सॉरी 8 3 11 और 1 12, 125 रिप्रेजेंट कर रहा है 250 को। तो एक कितने को करेगा? 2 को, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 7, ये आ जाएगा 78। इसको करेंगे 6 दूनी 12 कर दो, 9 2 8 दूनी 16 1 17, ये आ जाएगा 172। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट, द रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट इज 78। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉपकीपर परचेज 2 क्वालिटीज ऑफ पल्सेस, 2 क्वालिटी का दाल को खरीदा। एक तो 200 रुपए पर क्विंटल इसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और दूसरा 260 रुपए पर क्विंटल है। बोल रहा है कि इन 52 क्विंटल्स ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, दूसरा जो क्वांटिटी था जो 260 रुपए किलो था, उसका 52 क्विंटल्स को लिया। हाउ मच पल्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, मतलब पहला क्वालिटी का जो दाल था वो दूसरे क्वालिटी में किस क्वांटिटी में मिलाया गया, जिसके कारण वो उसको 25% लाभ रखकर 300 रुपए पर क्विंटल बेचा,
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बात को देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग का 200 है पर क्विंटल और एक है हम लोग का 260 पर क्विंटल, लेकिन ये हमको बता दिया कि ये कितना मिला रहा, तो ये हम लोग का 52 क्विंटल मिला रहा है ना, ये बात हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता कितना मिला रहा, और यही बात को हमको निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो 300 रुपए क्या है, ये 300 रुपए हम लोगों का सेलिंग प्राइस है एसपी, ये कॉस्ट है भाई, अगर ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो जो एवरेज आएगा ना ये भी कॉस्ट में आएगा, ये भी सीपी में आएगा, क्योंकि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, तो ये भी सीपी होगा, ये एसपी तो ये भी एसपी होगा, एक बात को ध्यान रखना। तो 25% का हम लोग का प्रॉफिट इसमें ऐड है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4, तो 4 और 1 5, तो 5 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 300 को, 5 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 300 को, तो 1 यूनिट कितना करेगा 60 को, इसलिए 4 यूनिट करेगा 240 को, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, मिक्स्ड दाल का जो 300 रुपए उसी का कॉस्ट प्राइस होगा 240 पर क्विंटल। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है या नहीं, ये बात बताओ पहले, ये बात क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसका क्वांटिटी है भाई हम लोग का 52 क्विंटल। अब देखो अभी 240 200 ये ज्यादा, इसमें से अगर हम माइनस करें तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर इसका निकालना है, तो इसको अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा हम लोग का 20, इसको अगर करें तो 40 आएगा, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, तो 1 और 2, तो ये 2 यूनिट मेरा इक्वली कितना 52 का है, इसका मतलब है कि वो 2 यूनिट मिला रहा तो ये 1 यूनिट मिला रहा, ये 2 यूनिट मिला रहा तो ये 1 यूनिट मिला रहा। ठीक है, 260 रुपए वाला अगर 2 यूनिट है तो 200 वाला 1 यूनिट है, ये कंडीशन है। और 2 यूनिट इक्वल है कितना 52 क्विंटल के, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो तुम बोलोगे 1 यूनिट होगा 26 क्विंटल, इसका मतलब हुआ कि ये 52 क्विंटल मिला है और ये 26 क्विंटल मिला है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सेम बनेगा जैसे हम लोग इसके पहले बनाए थे ना, सेम बनेगा, कोई अंतर नहीं। क्या वैल्यू है इसका 3.60 और एक है 4.20, लेकिन हमको पता है 8 kg ऑफ शुगर और कितना, इसका हमको पता है कि 8 kg है, लेकिन इसका नहीं पता, इसका हमको निकालना है। सेम तरीका, टोटल को बेच रहा है 4 रुपए 40 में, तो एसपी है हम लोग का कितना 4 रुपए 40, जब इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन जो होता है 1/10, इसका मतलब 10 और 1 11 यूनिट वैल्यू है इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4.40 डिवाइडेड बाई 11 करके इसको हटाएंगे, तो ये 0/11, 4 0 से 0 कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसका मतलब इसका जो एवरेज कॉस्ट है वो है 4। ठीक है, एवरेज कॉस्ट है वो है 4, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, सेलिंग प्राइस है 4.40। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.20, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.40, ये 0 ये 0 पॉइंट और पॉइंट खत्म हो गया, आ जाएगा 1/2, तो 2 kg रिप्रेजेंट करा 8 को, तो 1 kg कितना को करेगा, 1 kg करेगा 4 को, मींस 1 यूनिट करेगा 4 को, है ना।